Hello students, today we are going to see resolution in first order logic. So first of all, what is resolution that we will see. So resolution is a theorem proving technique that proceeds by building repetition proofs, that is proofs by contradiction, and it was invented by the mathematician that is John Allan Robinson in the year 1965. So where this resolution is useful? So resolution is useful if there are various statements are given and we need to prove the conclusion of those statements. So for example, we are having various statements in the English which is stored in the knowledge base of AI. Now from the various statements we need to prove some current conclusion. So for proving conclusion from various statements, this resolution technique is useful. And moreover, unification is a key concept in proofs by resolution. So how we resolve this? By using the unification. So unification is the key concept that is required over here. And regarding unification, I have prepared one video and the link is given in the comment box. You can check it. If you don't know how to build the unification, how to resolve unification, so you can go through that video. So resolution is a single inference rule which can efficiently operate on conjunctive normal form or the clause form. So what is conjunctive normal form? As we have studied this in theory of computation in first semester, right? So conjunctive normal form is what? Conjunction of disjunction. What is conjunction? That is and what is disjunction? That is or, right? So what is clause here? So disjunction of literals means disjunction of various atomic sentences, we called it as a clause. So instead of using disjunction keyword, we are using clause keyword. So in that reference, how we define conjunctive normal form? A sentence represented as a conjunction of clauses is said to be conjunctive normal form. Okay. Now we will see how the resolution in first order logic can be happen with the help of examples. Okay. Now one simple example over here, we can resolve two clauses or two atomic sentences which are given below, that is animal of g of x or loves of f of x, and second sentence, that is negation of loves of a comma b or negation of kills of a comma b. So in these two sentences we can see that there are two different predicates present, and to join these predicates same clause is used, that is or clause, right? So here how we resolve these two sentences? By using contradictory and by using unification. So what we do in the unification? We substitute the variables, right? For example, in these two statements or literals, which is common? That is loves is common, right? Yes or no? So where two complementary literals are, कौन से दो complementary literals? That is loves of f of x and negation of loves of a comma b. So these literals can be unified with the unifier, that is with the substitution theta of in place of f of x we are placing a, and in place of x we are putting b. Now by doing this, it will be generated the resolvent clause as animal of, because this two gets cancelled, and what is the resolved clause? What is remaining? That is animal of g of x or loves of or negation of kills of f of x comma x. So this is how we can apply the resolution on various clauses. Now we will see certain steps of resolution.
there are certain steps that is to be followed in resolution. That is, first, conversion of facts into first order logic. So whatever the statements is given, that we need to convert it into first order logic. Then next step, convert these first order logic statements into the conjunctive normal form. What is the meaning of this? If certain statements contains implication, double implication, so that we need to convert it into the conjunctive normal form, because we require all statements to be considered with and or clause, right? Now next, third is negate the statement which needs to be proved. So जो statements हमें prove करना है, उससे क्या करना है, हमें negate करना है, because what we are doing over here, using contradiction, we are proving that that statement is resolved, right? So for this, fourth step is what? Draw resolution graph, which is nothing but using unification. Fifth, to better understand all the above steps, we will take an example in which we will apply this resolution. Okay. Now next we will see the, here we see the example based on resolution. As in resolution, some statements are given and we need to prove some conclusion from that given statement. So here we can see above 5 statements are given, like John likes all kind of food, apple and vegetables are food, anything anyone eats and not killed is food. So like this 5 statements are given, and last one, that is this one, John likes peanuts. So this we need to prove from this above given statements. So how we convert it into the resolution and how we prove these statements. Okay. So for that purpose, what is the first step? That is conversion of facts into the first order logic. So these are the facts given in the form of English sentences, and this we need to convert into first order logic. So how we convert this into the first order logic? As we saw, various forms, that is exclusive or various implications, double implication, connectives we saw, right? So existential quantifiers, universal quantifiers, that we all saw, right, previously. So using that concepts itself, we need to convert this into the first order logic, right? So here we are going to try to convert first statement into the first order logic. How we convert that? So see here, John likes all kind of food. So first we need to find out which are the predicates present in this. So what are the different predicates present in this? That is likes and food. These are two predicates present here, right? And John is the attribute, right? So how we convert this? All means here all keyword is used. So for all, which identifier we use? That is for all means universal quantifier, right? So how we write this? And we consider x as one of the variable. So how we can convert this John likes all kind of food into the first order logic? Like suppose x is the variable, so for all x, that is we represent like this, such that food of x implies likes of John comma x, right? So what is the meaning of this? कि एक वेरिएबल है x जो John likes all kind of food. Suppose x is a food, so John likes that particular food. Yes or no? Suppose x is a food, so John likes that particular food. So इसीलिए हमने इसको रिप्रेजेंट कैसे किया? फॉर ऑल एक्स सच दैट फूड ऑफ एक्स इम्प्लाइज लाइक्स ऑफ जॉन कॉमा एक्स. सो जॉन वो फूड को लाइक करता है. लाइक दिस वी कैन कन्वर्ट फर्स्ट sentence, first fact into the first order logic. Now we see second one. How we convert second, that is apple and vegetables are food. So how we can convert this?
एप्पल्स एंड वेजिटेबल्स आर फूड, दोनों भी क्या है, फूड है. सो विच इज द प्रेडिकेट, फूड इज द प्रेडिकेट एंड एप्पल एंड वेजिटेबल्स आर द वेरिएबल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फूड, राइट. फूड के टाइप्स है, राइट. और इसीलिए यहाँ पे कीवर्ड कौन सा यूज किया है टू जॉइन दिस, दैट इज एंड. सो हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू द first order logic, that is food of apple, food is the predicate, like, right. So food of apple and food of vegetable, right. So this is how we can convert apple and vegetables are food into the first order logic. So food is the predicate एंड एप्पल एंड वेजिटेबल्स आर फूड, दोनों भी फूड है, फूड ही है. इसीलिए उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, फूड ऑफ एप्पल एंड फूड ऑफ वेजिटेबल्स, राइट. नाउ इफ यू कंसीडर थर्ड स्टेटमेंट, एनीथिंग एनीवन ईट्स एंड नॉट किल्ड इज फूड. नाउ हियर हमें दो अलग अलग वेरिएबल लेने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनीथिंग एनीवन बोला है, किसी ने भी कुछ भी खाना, राइट. अगर किसी ने भी कुछ भी खा के, वो कुछ भी फूड खा के वो मरा नहीं है, यस और नो, यस, राइट. सो एनीथिंग, सो सपोज एक वेरिएबल लेते हैं हम लोग एनीथिंग के लिए, सपोज एक्स लिया, ठीक है, मीन्स कोई भी टाइप का फूड लेते हैं, ठीक है. तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, एनीथिंग मीन्स कैसे लिखेंगे इसको, दैट इज फॉर ऑल एक्स, राइट. नाउ एनीवन, तो हम लोग उसके लिए एक वाई वेरिएबल लेंगे पर्सन के लिए, एक्स किसके लिए लिया, फूड के लिए लिया, राइट. सो एनीवन, सपोज फॉर ऑल वाई, सो एनीथिंग एनीवन. सो हाउ वी रिप्रेजेंट, फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई, सच दैट क्या किया उसने, ईट किया. क्या ईट किया, फूड ईट किया. किसने ईट किया, पर्सन ने ईट किया. सो हाउ वी राइट इट, सो ईट्स ऑफ, its is the predicate, right. So it's of x comma y, right. And इसने eat किया and not killed. So not killed means कौन killed होगा, so and not killed, how we represent not, how we represent not, like this, right. Not of killed of x implies food of y. So food y ईट करने के बाद एक पर्सन ने फूड y को ईट किया, फिर भी वो मरा नहीं. So like this, yes or no. So that we can convert like this, anything anyone eats and not killed is food. ठीक है. अगर उस पर्सन ने वो फूड खा के नहीं मरा है तो वो फूड ही है, राइट. सो दैट वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस, क्लियर. नाउ नेक्स्ट, इफ यू कंसीडर अनिल ईट्स पीनट्स एंड स्टिल अलाइव, राइट. अनिल ईट्स पीनट एंड स्टिल अलाइव. सो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट, which are the predicates, eats and alive is the predicate. तो किसने क्या खाया, अनिल ने पीनट्स खाए. सो हाउ वी रिप्रेजेंट दिस, दैट इट्स इज द प्रेडिकेट एंड अनिल इज द वेरिएबल. एंड अनिल ने क्या खाया, पीनट खाया. पीनट इज सेकेंड वेरिएबल फॉर दैट, राइट, क्लियर. सो हाउ वी रिप्रेजेंट अनिल ईट्स पीनट्स, दैट इज ईट्स ऑफ अनिल कॉमा पीनट्स. एंड सो एंड कीवर्ड लगा दो यहाँ पे, कनेक्टिव लगा दो एंड, राइट. एंड स्टिल अलाइव, कौन अलाइव है, अनिल अलाइव है. सो राइट, सो अलाइव इज अ प्रेडिकेट और कौन अलाइव है, अनिल अलाइव है. सो हाउ वी रिप्रेजेंट इट, अलाइव ऑफ अनिल. सो अनिल ईट्स पीनट्स एंड स्टिल अलाइव, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस, ईट्स ऑफ अनिल कॉमा पीनट एंड अलाइव ऑफ अनिल, क्लियर. Now if you consider next, that is Harry eats everything that Anil eats. Harry eats everything that Anil eats. So how we can convert this into first order logic? Harry ने जो भी खाया वही अनिल ने खाया,
राइट, अनिल ने जो भी खाया वही हैरी ने खाया, राइट. सो अनिल ने सपोज एक्स ये कुछ तो खाया, राइट, फॉर ऑल एक्स सच दैट इट्स ऑफ, इट्स इज द प्रेडिकेट, राइट. सो इट्स ऑफ अनिल कॉमा एक्स, तो अनिल ने एक्स खाया सपोज, इम्प्लाइज इट्स ऑफ वही क्या खाया, हैरी ने खाया, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हैरी कॉमा एक्स. क्लियर. So how this is converted, that is for all x it's of Anil comma x implies it's of Harry comma x. Clear. Now this is how we have converted these facts into the first order logic. This is given in next slide, we can see over here like this, first 5 sentences A B C D E, and from this these are two added predicates, that is for all x not killed of x इम्प्लाइज अलाइव ऑफ एक्स. मीन्स अगर वो किल नहीं हुआ तो वो क्या रहेगा, अलाइव रहेगा. सेम अगर वो अलाइव है तो वो किल नहीं होगा. ये दो एडिशनल प्रेडिकेट्स इसमें ऐड किए गए हैं. क्लियर. एंड व्हाट वी नीड टू प्रूव, दैट इज लाइक्स ऑफ जॉन कॉमा पीनट, लाइक्स ऑफ जॉन कॉमा पीनट. सी हियर, जॉन लाइक्स पीनट, सो विच इज द प्रेडिकेट, लाइक्स इज द प्रेडिकेट. क्या लाइक करता है, जॉन पीनट को लाइक करता है, राइट. सो हाउ वी रिप्रेजेंट लाइक्स ऑफ जॉन कॉमा पीनट. सो दिस वी नीड टू प्रूव. क्लियर. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप. सो फर्स्ट स्टेप इज ओवर, वी हैव कन्वर्टेड ऑल फैक्ट्स इनटू द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, right. Now what is the next step, that is conversion of first order logic into the CNF form. CNF form is what, conjunction of disjunction. means इसमें क्या करना है हमें, जो भी implication given है in this that we need to remove. so implication remove करना है means what, कि अगर suppose P implies Q है, P implies Q, तो इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है एंड और कनेक्टिव्स में, तो हाउ वी कन्वर्ट, दैट इज P implies Q क्या होता है, निगेशन ऑफ P और Q होता है, राइट. सो यहाँ पे जो इम्प्लीकेशन है उसको हमें हटाना है और उसके जगह पे ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है. क्लियर. सो लाइक इफ़ यू कंसीडर ऑल एक्स फूड ऑफ एक्स इम्प्लाइज लाइक्स ऑफ जॉन ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, P क्या है, फूड ऑफ एक्स, Q क्या है, लाइक्स ऑफ जॉन ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ फूड ऑफ एक्स और लाइक्स ऑफ जॉन कॉमा एक्स, लाइक दिस. सो दिस इज हाउ इट शुड बी कन्वर्टेड. सो ये कन्वर्ट होके ये ऐसे हमें मिलेंगे. क्लियर. तो सेकेंड स्टेप ओवर हो गई. सो सी हियर, इफ यू कंसीडर थर्ड वन, सो थर्ड वन क्या था, इट्स एक्स कॉमा वाई एंड नॉट किल्ड ऑफ एक्स, तो ये पूरे इसके ऊपर अप्लाई होगा, निगेशन ऑफ P, तो ये पूरा सेंटेंस है P, राइट. और फूड ऑफ वाई, ठीक है. सो और फूड ऑफ वाई, लाइक दिस. क्लियर. सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू नेक्स्ट, वी नीड टू मूव दिस निगेशन इनवर्ड्स एंड रीराइट. सो यहाँ पे जैसे निगेशन था आउटसाइड ऑफ दिस ब्रैकेट, तो इसको क्या करना है, हमें इनसाइड मूव करना है. तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट. सी हियर, सो निगेशन ऑफ इट्स ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड बिकम्स और, निगेशन निगेशन गेट्स कैंसल्ड एंड किल्ड ऑफ एक्स और फूड ऑफ वाई, ऐसे हो जाएगा. क्लियर. सेम और कहाँ पे था, एक यहाँ पे भी था, तो निगेशन इनसाइड लिया हमने, तो लाइक दिस इट विल बी कन्वर्टेड. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्या है, हमें रीनेम करने होंगे वेरिएबल सो दैट वी कैन स्टैंडर्डाइज इट. क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स वाई ही सारे जगह पे हमने यूज़ किया है. सो इसीलिए हमें क्या करने होंगे, उसको रीनेम करने होंगे. तो हम लोग रीनेम करने के बाद ये क्या हो जाएंगे, सपोज एक्स पहले इसमें यूज़ हुआ, तो नेक्स्ट टाइम एक्स वाई के जगह पे क्या यूज़ करेंगे हम लोग, सपोज वाई जेड की यूज़ करेंगे. नेक्स्ट एक्स के जगह पे डब्ल्यू यूज़ किया, नेक्स्ट एक्स के जगह पे जी यूज़ किया, नेक्स्ट एक्स के जगह पे के यूज़ किया, लाइक वाइज. क्लियर. सो रीनेमिंग वेरिएबल्स और स्टैंडर्डाइज वेरिएबल्स, सो ये होने के बाद ये हमें मिल जाएंगे, राइट. नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट, यहाँ पे जो भी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंटेनिएशन हम लोग उसको बोलते हैं, या फिर
क्वांटिफायर जो भी है जैसे फॉर ऑल फॉर सम, वो हमें क्या करने हैं, रिमूव करने, इलिमिनेट करने हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एक्स यहाँ से निकल जाएगा, फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल जेड थर्ड इसमें से निकल जाएगा, फिफ्थ इसमें से फॉर ऑल डब्ल्यू ये एक निकल जाएगा, फॉर ऑल जी ये क्या है, ये सब भी यहाँ से इलिमिनेट हो गए, सिर्फ बाकी के यहाँ पे बचेंगे। क्लियर? तो हाउ वी डू दैट? So we'll get these statements. Now next is what? Third step is what? हमें क्या करना है? प्रूव करना है स्टेटमेंट लाइक्स ऑफ जॉन कॉमा पीनट, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है? फर्स्ट निगेट करना है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को टू प्रूव, ठीक है। बिकॉज यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू हम लोग इसको प्रूव करेंगे। क्लियर? तो इसके लिए क्या करना है? हमें रिजोल्यूशन ग्राफ ड्रॉ करना है। क्लियर? कंसीडर लेफ्ट टॉप मोस्ट निगेशन ऑफ लाइक्स ऑफ जॉन कॉमा पीनट्स। तो इसमें से हमें निगेशन ऑफ लाइक्स से तो पॉजिटिव लाइक्स कौन से स्टेटमेंट में गिवन है दैट वी नीड टू फाइंड आउट, ठीक है। तो इफ़ यू कंसीडर ओवर हियर, सो यहाँ पे किस में प्रेजेंट है, दैट इज लाइक्स ऑफ जॉन कॉमा एक्स प्रेजेंट है, वहाँ पे निगेशन था, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो ये हमें क्या करना है? कैंसिल आउट करना है। तो इसीलिए यहाँ से कौन सा स्टेटमेंट हम लोग उठाएंगे? फर्स्ट वाला, दैट इज निगेशन ऑफ फूड ऑफ एक्स और लाइक्स ऑफ जॉन कॉमा एक्स। तो ये अगर हम लोग उठाते हैं तो यू कैन सी इन द राइट हैंड साइड निगेशन ऑफ फूड ऑफ एक्स और लाइक्स ऑफ जॉन कॉमा एक्स, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे लाइक्स में देखो हमें क्या है, लाइक्स इज प्रेडिकेट सेम है लेकिन उसके जो वेरिएबल्स है, आर्ग्यूमेंट्स है, दैट इज़ डिफरेंट। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? रीनेमिंग करना होगा, ठीक है। जॉन सेम है तो एक्स को हमें क्या कन्वर्ट करना होगा? पीनट। तो इसको क्या करना है? सब्सटीट्यूट करना है एक्स के जगह पे पीनट। तो हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है एक्स के जगह पे पीनट डालना है, तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। तो व्हाट इज रिमेनिंग फ्रॉम दिस? दैट इज निगेशन ऑफ फूड ऑफ पीनट्स, क्योंकि एक्स के जगह पे हमने क्या डाला है? पीनट्स डाला है, तो दैट इज रिमेनिंग। तो अभी हमें कौन सा एक फैक्ट लेना होगा जिसमें फूड ऑफ कुछ तो प्रेजेंट है, राइट? क्योंकि यहाँ पे निगेशन ऑफ है। तो इफ़ यू कंसीडर ओवर हियर, तो इसमें से फूड, पॉजिटिव फूड किस में प्रेजेंट है? तो इसमें भी है, सेकेंड इसमें, लेकिन हमें एक ही फूड जिसमें है वो चाहिए। यहाँ पे दो दो है तो वो नहीं चाहिए हमें। तो थर्ड स्टेटमेंट आप लोग अगर कंसीडर करते हो तो उसमें पॉजिटिव फूड प्रेजेंट है, तो दैट वी पिक अप फ्रॉम दिस, राइट? तो ये पूरा सेंटेंस हम लोग पिक करेंगे, दैट इज ईट्स ऑफ वाई कॉमा जेड और किल्ड ऑफ वाई और फूड ऑफ जेड। सो यू कैन सी ओवर हियर दैट वी हैव पिक्ड हियर नेक्स्ट स्टेटमेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड, राइट? सो फूड ऑफ, अभी यहाँ पे क्या है? जेड है और यहाँ पे पीनट्स है, तो जेड के जगह पे हमें क्या डालना है? पीनट्स डालना है, ठीक है। सो दिस विल गेट कैंसल्ड आउट। नाउ जेड के जगह पे हम लोगों ने क्या डाला था? पीनट्स। तो सी हियर व्हाट इज रिमेनिंग? निगेशन ऑफ इट्स ऑफ वाई कॉमा पीनट और किल्ड ऑफ वाई, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव, निगेटिव इट्स है तो हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव इट्स चाहिए, राइट? सो पॉजिटिव इट्स कहाँ पे है? So here we can see पॉजिटिव इट्स कहाँ पे है? तो इट्स ऑफ अनिल कॉमा डब्ल्यू एंड इट्स ऑफ हैरी कॉमा डब्ल्यू उसमें है, राइट? दूसरा तो नहीं है कुछ। तो इट्स में क्या है? पॉजिटिव इट्स है अनिल कॉमा पीनट्स। तो ये क्या होगा? y को हमें रिप्लेस करना होगा अनिल के साथ। तो व्हाट इज रिमेनिंग? किल्ड ऑफ अनिल। तो यहाँ पे ऐसे कोई है क्या निगेशन ऑफ किल्ड वाला? तो है, कौन सा है? दिस वन, अलाइव ऑफ के और निगेशन ऑफ किल्ड ऑफ के। तो वो हम लोग यहाँ पे उठाएंगे, निगेशन ऑफ अलाइव ऑफ के और निगेशन ऑफ किल्ड ऑफ के। तो के जगह पे क्या डालेंगे हम लोग अभी यहाँ पे? अनिल, बिकॉज यहाँ पे किल्ड में क्या है? अनिल है, यहाँ पे के है, तो इसको रिप्लेस करेंगे के को अनिल के साथ। सो व्हाट इज रिमेनिंग? दैट इज निगेशन ऑफ अलाइव ऑफ अनिल। सो वी हैव अलाइव ऑफ अनिल प्रेडिकेट प्रेजेंट, सो दिस गेट्स कैंसल्ड। सो हेंस यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन वी आर प्रूविंग दैट दिस स्टेटमेंट इज proved from the given statements. Hence the negation of the conclusion has been proved as a complete contradiction with the given set of
statements. So here we can see the explanation is given. So this is how we can prove using resolution from the given statements how to find out the conclusion. So thank you for kind listening. If you like this video, so please subscribe my channel and like this video. Thank you.